Hello everyone. Welcome to the second part of chapter 4. So briefly we will see what we have done already in the first part. So the fourth chapter is about climate, especially the climate of India. So briefly we learned about various definitions related to climate, weather, etc. Then as we learned that India has a monsoon type of climate. Different types of climate exist throughout the world, and then there were various parameters based on which we assign or categorize, classify different types of climates. So for example, precipitation, temperature, etc. And we learned also that India has various types of climatic regions. So regionally, these parameters of climate have wide variations within India also. So overall, India has monsoon climate, but within monsoon climate also, there are various regional differences, regional variations. That's what we have learned. Climatic controls. So climatic controls are one, you can say, different factors which control the climate of a region or which shape a climate of a region. So for example, latitude, altitude, pressure, wind system, distance from sea, ocean currents, relief features, all of these features in a way affect a region's climate or they shape a region's climate. So we briefly learned about them and then we moved to factors affecting India's climate. So then we went for specific study of India's climate and how these factors are shaping India's climate. So today we will start with the seasons. The seasons. The monsoon type of climate is characterized by a distinct seasonal pattern. So India has monsoon type. So what are the seasons that we are going to study in this Indian monsoon type of climate? The weather conditions greatly change from one season to the other. These changes are particularly noticeable in the interior parts of the country. The coastal areas do not experience much variation in temperature, though there is variation in रेनफॉल पैटर्न. तो ये बता रहे हैं कि जो इंटीरियर रीजन है, वेदर को जनरली हम लोग किससे देख रहे हैं? टेम्परेचर से देख रहे हैं. वेरिएशन इन टेम्परेचर, डे नाइट, एनुअली, सीजनली, तो हर तरह के वेरिएशंस वी आर लुकिंग एट. एंड ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन के टेम्परेचर से, प्रेसिपिटेशन के वेरिएशन से. तो व्हाट दिस इज सेइंग दैट इंटीरियर regions of the continental regions, continental parts, interior parts of India, they witness wide variation in temperature, both temperature and precipitation. Whereas in the coastal region, you will see that the temperature, because of the moderating effect of the sea, will be less variation in temperature, but there also you will witness wide variation in precipitation because of this monsoon pattern, monsoon type of climate. How many seasons are experienced in your place? Four main seasons can be identified. Four main seasons can be identified in India: the cold weather season, hot weather season, advancing monsoon. एडवांसिंग मानसून मतलब मानसून जो क्लाउड्स हैं दे आर एडवांसिंग, मतलब वो इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं. एंड दी रिट्रीटिंग मानसून, मतलब मानसून इंडिया में फैल गए पूरी तरह से, नॉर्दर्न हिमालयन फुटहिल्स तक पहुंच गए, उसके बाद वापस से रिट्रीट कर रहे हैं. रिट्रीट मतलब लौटना, तो वापस वो समुद्र की तरफ रिट्रीट कर रहे हैं with some regional variations. So these four are the broad categories. So some of the regions might be there which may not have distinct four categories. Some of them may have advanced. So with some regional variations you will find these. Now we will start with the cold weather season. The cold weather season begins from mid-November. November के बीच से start होती है. Now global climate change, that is also global warming, that is also affecting the timing of these and erraticity in these climatic patterns. But what we are talking about is the average. For example, if you take 10-year data, then what will be the average value of time? So we are talking about that. बोलो ना, minimum 30 years of data is required for defining a climate or finding the pattern of climate. So it is starting from mid-November in northern India and stays till Feb. तो February तक रहता है cold weather. December and January are the coldest month. We are witnessing already in the northern part of India. The temperature decreases from south to the north. Temperature decreases, मतलब temperature ज़्यादा कहाँ है? South में, obviously because of the moderating effect of sea, और decrease करता है north की तरफ. तो Himalayas की तरफ आप जाओगे तो आपको
You will have snowfalls, etc. also to be witnessed. The average temperature of Chennai on the eastern coast is between 24 to 25 डिग्री सेल्सियस. इमेजिन, ठीक है, इतना टेम्परेचर है चेन्नई का कोस्टल रीजन में. while in the northern plains it ranges between 10 degree Celsius to 15 degree Celsius. That is what we are talking about average temperature. It is not specific. Nights में बहुत ज़्यादा गिर सकता है वो temperature. Days में थोड़ा warm हो सकता है. Days are warm and nights are cold. Frost is common in the north. Frost is common in the north. And the higher slopes of Himalayas experience snowfall. अभी डिस्कस किया हमने. तो जो famous hill stations हैं हिमालयाज में, there you can find snowfall in the winters. During this season, the northeast trade winds prevail over the country. तो इस सीजन में जो हमने, जैसे इससे पहले विंड पैटर्न जब हम पढ़ रहे थे इसी चैप्टर में, तो हमने देखा था कि इफ यू डिवाइड इंडिया, विंड पैटर्न जो प्लानिटरी मोशन है उसका विंड पैटर्न आप अगर देखो तो इफ इट इज इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इक्वेटर से ऊपर से एयर जाती है, ठीक है, यहाँ इवेपोरेशन होता है, इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा सन का एक्सपोजर है, इवेपोरेशन होगा, यहाँ तक जाती है, यहाँ पे एयर डिसेंड करती है और वापस साउथ में फ्लो करने की कोशिश करती है. लेकिन कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से दिस विल बेंड टुवर्ड्स राइट और ऐसा मूवमेंट हो जाता है एयर का, ठीक है, इस डायरेक्शन में. सिमिलरली यहाँ पर इधर भी एयर ऊपर से जाएगी इवेपोरेट होके और फिर नीचे डिसेंड करेगी यहाँ पे सब ट्रॉपिक्स में, फिर इक्वेटर की तरफ जाएगी विच इज़ अ लो प्रेशर जोन, एंड कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से लेफ्ट की तरफ बेंड होगी इस बार सदर्न हेमिस्फीयर में, एंड द डायरेक्शन विल बी लाइक दिस, ठीक है. तो यही बता रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है तो इसीलिए बोल रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स. और इस विंड को क्या बोलते हैं, जो इस जोन में फ्लो करती है, ट्रॉपिक्स में फ्लो करती है, दैट इज ट्रेड विंड्स. सो विंटर के समय क्या होता है कि दैट वुड प्रिवेल, और ऑब्वियसली सन इज इन दी साउथ समवेयर, सन इज हियर समवेयर, तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन है, यहाँ पे हाई प्रेशर जोन है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड का वैसे भी एक पैटर्न होगा. तो दिस नॉर्थ ईस्ट ट्रेड इज देयर, और ये हमने देखा था कि इंडिया यहाँ पे कहीं है, यहाँ लैंड मास है ऊपर इंडिया के. तो नॉर्थ ईस्ट जब ट्रेड आ रही है तो व्हाट इज इट, इट इज ऑफ शोर, इट इज ऑफ शोर, दैट इज, इट इज नॉट ऑफ शोर, इट इज कमिंग फ्रॉम, यहाँ चाइना पे ये ऑन शोर होगी, चाइना पे तो ह्यूमिडिटी लेके आएगी, फिर ये रेनफॉल करवाती हुई, चूंकि लैंड के थ्रू आ रही है तो इसमें मॉइस्चर बहुत कम होगा, तो इसलिए आपको विंटर में बारिश इंडिया में विटनेस करने को नहीं मिलेगा. जबकि आप चाइना टाइप के क्लाइमेट में जाओगे तो बिकॉज इट इज ऑन द बॉर्डर ऑफ ओशंस, तो ओशन से डायरेक्ट हवा आती है, तो इवन विंटर रेनफॉल यू विल विटनेस इन चाइना कोस्टल रीजन्स. यहाँ पे क्या है कि जो यही विंड है आपकी आगे जब बढ़ेगी तो अरेबियन सी में थोड़ा मॉइस्चर पिकअप कर सकती है, तो यहाँ कोस्टल रीजन ऑफ तमिलनाडु, यहाँ पे आपके थोड़ा बहुत रेनफॉल आपको मिलेगा because of the northeast trade winds. Okay, so northeast trade, they blow from land to sea. They from land to sea, and hence for most part of the country it is dry season. अभी हमने डिस्कस किया. Some amount of rainfall occurs on the Tamil Nadu coast. उसका भी रीजन देखा क्योंकि the same wind will pick up some of the moisture from the Arabian Sea, so that's why they will cause some rainfall on Tamil Nadu coast. As here they blow from sea to land. What is the sea? Arabian Sea. In the northern part of the country, a feeble high pressure region develops. Sun is where? Sun is facing the southern hemisphere. ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर फीबल हाई प्रेशर मतलब थोड़ा कम, फीबल मतलब वीक, एक वीक हाई प्रेशर रीजन डेवलप करता है विद लाइट विंड्स मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम दिस एरिया. तो यहाँ से बाहर की तरफ लाइट विंड फ्लो करेगी. Influenced by the relief, these winds blow through the Ganga Valley from the west and the northwest. अब इसका डायरेक्शन बता रहे हैं. With light winds moving outward from this area, influenced by the relief. अब रिलीफ क्या है यहाँ पे? रिलीफ है कि प्लेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स, और उसमें गंगा रिवर फ्लो कर रही है.
तो अगर कोई रिवर फ्लो कर रही है तो जाहिर सी बात है वो स्लोप में फ्लो कर रही होगी, और जो सबसे लोवेस्ट हाइट वाला एरिया होगा उसमें फ्लो कर रही होगी। तो जो वैली, एक तरह से आप बोल सकते हो कि इवन प्लेन में आप वैली ढूंढने जाओगे तो ग्रेडियंट बहुत कम होगा, बट दैट विल बी द एरिया। सो दिस, चूंकि बहुत वीक प्रेशर है, हाई प्रेशर, तो जो विंड फ्लो करती है वो वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो सपोज आप, अगर ये इंडिया है, तो वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ये वेस्ट हो गया और ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो इस डायरेक्शन से आती, और जो ये गंगा का स्लोप है, वैली है, इस वैली के अलोंग फ्लो करती है। तो यहाँ से कोल्ड वेव्स आ रही हैं और धीरे धीरे कोल्ड विंड्स आती हैं, और वो इन्फ्लुएंस करती हैं विंटर सीजन में। द वेदर इज नॉर्मली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई। तो जनरली क्लियर स्काई रहता है, लो टेम्परेचर्स एंड लो ह्यूमिडिटी एंड फीबल वेरिएबल विंड। तो लो टेम्परेचर आपने, और लो ह्यूमिडिटी भी रहेगी, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं रहती, ड्राइनेस फील आती है विंटर में, ठीक है। नॉर्दर्न इंडिया की बात हो रही है। फीबल और फीबल वेरिएबल विंड्स, वीक वेरिएबल विंड मतलब हल्की हवा होती है जो कि चेंज होती रहती है, कभी रहेगी कभी नहीं रहेगी। A characteristic feature of the cold weather season over the northern plains is the inflow of cyclonic disturbances from the west and the northwest. एक characteristic feature बता रहे हैं। Characteristic feature means something which is a very innate quality of something. Okay? जैसे कोल्ड वेदर सीजन जो इंडिया में है, इसका एक बहुत स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, स्पेशल फीचर है। वो फीचर क्या है कि ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स इज द इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस का इनफ्लो, मतलब साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस का इन्फ्लुएंस आता है फ्रॉम वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट, इसी डायरेक्शन में जो हमने अभी डिस्कस किया है, इसी डायरेक्शन से साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस का, इसी डायरेक्शन से आपका साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस का असर आएगा, ठीक है। अब ये साइक्लोनिक क्या है, यहाँ पे आप पीछे जाओगे तो वो बताएंगे, यहाँ पे देखते हैं। These low pressure systems originate over the Mediterranean Sea। और ये साइक्लोनिक सिस्टम कहाँ है? साइक्लोनिक सिस्टम लो प्रेशर वाले भी हो सकते हैं, हाई प्रेशर वाले भी हो सकते हैं। तो जो हाई प्रेशर वाले होते हैं वो क्या बोलते हैं? एंटी साइक्लोनिक, ठीक है। लो प्रेशर वाले हैं तो साइक्लोनिक है। एंड दी वेस्टर्न एशिया, तो मेडिटेरेनियन सी एंड वेस्टर्न एशिया, तो वी ऑल नो दी, इफ यू सी इन दी वर्ल्ड मैप, तो सपोज दिस इज द लोकेशन ऑफ इंडिया, तो इसके पीछे आपका वेस्ट एशिया हो जाएगा इधर, और यहाँ पे ही आपका मेडिटेरेनियन सी आएगा, ठीक है। इधर यूरोप हो जाएगा आपका, इधर अफ्रीका हो जाएगा नीचे, इधर यूरोप है, इधर अफ्रीका है, और बीच में आपका वेस्ट एशिया पड़ेगा। तो इस मेडिटेरेनियन सी से जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस होती हैं वो इधर ट्रैवल करके आती हैं, और उनका असर होता है। तो जब भी आप ठंड बढ़ जाती है तो यू मस्ट हैव हर्ड कि लोकल टर्म्स में भी बोलते हैं ना कि ये हवा बह गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देर आर टर्म लाइक पछुआ बह गई हवा, पश्चिम से हवा आ रही है। तो दिस इज व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड हियर, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो पश्चिम से जो हवा आ रही है दैट इज ब्रिंगिंग द चिलीनेस, ठीक है, क्योंकि उधर टेम्परेचर ज़्यादा है, ऑब्वियसली दैट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ साइबेरियन विंड्स। तो वहाँ पे हम अभी तक से हिमालय की वजह से प्रोटेक्ट हो रहे थे, लेकिन ये वेस्टर्न साइड से और नॉर्थ वेस्टर्न साइड से कुछ पासेज हैं, वहाँ से मतलब थोड़ा चांस है आने का, तो वहाँ से आ जाती हैं, कभी कभी बीच में आएंगी, और जब आएंगी तो अलॉन्ग विद द वेस्टर्ली फ्लो। और ये किसके साथ आ रही है? वेस्टर्ली फ्लो। तो जो हमने अभी ग्लोबल पैटर्न देखा था, ग्लोबल फ्लो में क्या होता है? इक्वेटर, सब ट्रॉपिक्स, तो इसमें ट्रेड विंड्स फ्लो करती हैं ऐसे, ठीक है। इसमें क्या फ्लो करती हैं? वेस्टर्लीज। उनका डायरेक्शन क्या होता है? ये होता है, बिकॉज दे आर मूविंग वेस्ट वर्ड, तो ये जब राइट डिफ्लेक्ट होंगी तो स्लाइटली नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी, तो इनका डायरेक्शन ये होता है वेस्टर्लीज, इसीलिए इनको बोलते हैं वेस्टर्लीज, वेस्ट से आ रही हैं। तो ये परमानेंट विंड्स हैं, इनके इन्फ्लुएंस में आकर के जो साइक्लॉन्स हैं वो वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आकर के इधर के वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, और वेस्ट की तरफ फ्लो करते करते इंडिया भी पहुंच जाती हैं। दे कॉज द मच नीडेड विंटर रेन्स, मच नीडेड विंटर रेन्स।
तो किसके लिए विंटर रेन्स नीडेड है भाई? हम लोगों को तो विंटर रेन्स बहुत पसंद नहीं आएगा, तो मच नीडेड क्यों बोला जा रहा है? बट दीज विंटर रेन्स आर इम्पॉर्टेंट। नॉर्दर्न इंडिया में विंटर रेन्स किसकी वजह से हो रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड की वजह से नहीं हो रहे हैं, वो वेस्टर्ली के अंदर इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम मेडिटेरेनियन उनकी वजह से हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं कि रेन्स कर रहे हैं प्लेन्स में और स्नोफॉल कर रहे हैं माउंटेन्स में। ठीक है, रेन्स ओवर द प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स। Although the total amount of winter rainfall, locally known as Mahavat, local terms are important. Total amount of winter rainfall is small. They are of immense importance for the cultivation of rabi crops. अब आपको importance समझ में आ रही होगी। ये जो rains हैं, winter rains, nobody would like to have them, but from the cold point of view, ठंडे में कौन गीला होना चाहता है? But they are very important for the rabi crops. The peninsular region does not have a well-defined cold season. Peninsular region, we are going to South India, तो इसमें एक well-defined cold season नहीं है because of the moderating effect of the oceans. There is hardly any noticeable seasonal change in temperature pattern. ठीक है, temperature pattern में there is not any noticeable change during winters due to the moderating influence of the sea. Okay, ये आप देख लो, इसमें मॉनसून का मूवमेंट दिखाया गया है, which we will come to see. Next is hot weather season, summer. So hot season is summer due to the apparent northward movement of the sun. एक term important है. What is apparent? Apparent means there is no real movement of, ठीक है, ऐसा नहीं है कि sun north में चला गया, but apparent movement है। ठीक है, वो आपके अर्थ के टिल्ट, रोटेशन, इन सब की वजह से, रोटेशन, रिवोल्यूशन, इन सब की वजह से ये मोशन जनरेट होता है, जिससे लगता है कि सन नॉर्थ में शिफ्ट हो गया। तो विंटर में क्या था? सन सदर्न हेमिस्फीयर में था। विंटर में आपका सन इस साइड था, फेसिंग, इसके ऊपर जनरली सन, जो दोपहर में सन आएगा वो यहाँ पे आएगा कहीं पे, मतलब डायरेक्ट सिर के ऊपर। समर में क्या हो जा रहा है, वो इसको फेस करेगा। ठीक है, और जो उत्तरायण होता है आपका, दैट इज मकर संक्रांति, उसमें क्या होता है? मकर संक्रांति में अब इधर मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है। एक्सट्रीम, मकर संक्रांति से पहले तक आपका सन यहाँ जा रहा था, इक्विनॉक्स एंड अदर टर्म्स वी यूज, सन इधर की तरफ जा रहा था, मैक्सिमम रीच किया उसने और मकर संक्रांति, नाउ इट हैज स्टार्टेड मूविंग दिस साइड एंड बाय द समर, पीक समर, इट विल रीच दिस। जब यहाँ आ जाएगा तो पीक समर होगा उस समय, और फिर वापस मूवमेंट शुरू करेगा, और जब यहाँ इधर की तरफ शिफ्ट होगा तो विंटर आना स्टार्ट हो जाएगा। So that's how the weather patterns change. The global heat belt shifts northward. तो सन के साथ साथ ऊपर ITCZ जिसको बोलते हैं वो शिफ्ट होगा ऊपर. As such, from March to May, it is hot weather season in India. मार्च से मई में क्या है? हॉट वेदर सीजन, यू शुड नो। बट सबका मंथ पता होना चाहिए कि एवरेज मंथ्स कौन से हैं। जैसे उसमें बताया मिड नवंबर टू फेब, दैट वाज द कोल्ड सीजन, मार्च टू मई इज हॉट वेदर सीजन. The influence of the shifting of the heat belt can be seen clearly from temperature recordings taken during March, May at different latitudes. In March, the highest temperature is about 38 degrees Celsius. March में highest temperature 38 degrees Celsius recorded on the Deccan Plateau. South India में feel कर रहे हैं सबसे पहले. In April, temperature in Gujarat and Madhya Pradesh are around 42 degrees Celsius. In May, temperature of 45 degrees Celsius is common in the northwestern part of the country. तो आप देखो कि हाईएस्ट टेम्परेचर शिफ्ट हो रहा है सन के साथ साथ। मार्च में डेक्कन, मतलब थोड़े साउथ इंडिया की तरफ आप जा रहे हो, तो डेक्कन में आपको हाई टेम्परेचर मिल रहा है। उसके बाद थोड़ा ऊपर आओगे तो गुजरात, मध्य प्रदेश, जो कि सेंट्रल हाईलैंड्स के रीजन में आ रहे हैं, वहां पे आपको मिल रहा है। और फिर जैसे ही टाइम बढ़ रहा है और सन ऊपर की तरफ आ रहा है, दैट इज इन द नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मूव कर रहा है सन, देन यू विटनेस कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, दैट इज राजस्थान रीजन्स में आपको हाईएस्ट टेम्परेचर्स मिल रहा है। In peninsular India, temperatures remain lower due to the moderating influence of the oceans. ये हमने देख लिया already. The summer months experience rising temperature
एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन दी नॉर्दर्न। तो टेम्परेचर राइज कर रहा है, टेम्परेचर राइज करेगा, लैंड मास है, लैंड मास है तो एयर गर्म होगी और एयर अपलिफ्ट होगी, so you will have falling air pressure. So air pressure will reduce because of this heating of the land mass in the northern part of the country towards the end of May. We all have felt the heat waves का सबसे peak time. An elongated low pressure area develops. Elongated low pressure area develops in the region extending from Thar Desert to the northwest. In the northwest to Patna and Chota Nagpur Plateau in the east and southeast. Circulation of air begins to set in around this trough. तो ये बता रहे हैं कि जब मई का एंड आता है, मई महीने के अंत में क्या हो रहा है, थार, राजस्थान में आप थार ले लो, यहाँ से लेकर के पटना और छोटा नागपुर प्लेटू, मतलब ऑलमोस्ट ये वाली बेल्ट आप समझ लो। इस वाले बेल्ट में क्या हो रहा है कि डिफाइंड नहीं है, उसके आसपास है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा लो प्रेशर सेट हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ओवर हीटिंग हो गई है लैंड मास की। तो ट्रफ इज व्हाट, सो इफ यू सी अ वेव पैटर्न, this is the highest, this is called crest, this is the lowest, that is called trough. ट्रफ मतलब हुआ लोवेस्ट ऑफ समथिंग, वैली एकदम गहराई जो है, तो यहाँ पर लोवेस्ट ऑफ एयर प्रेशर हो गया, एयर प्रेशर के टर्म में ये ट्रफ हो गया। और वी नो कि एयर विंड्स मूव इन विच डायरेक्शन, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड्स का मूवमेंट क्या होगा, हमेशा ये होगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो अब यहाँ पर लोवेस्ट प्रेशर हो गया, तो विंड्स क्या होंगी, हर एक डायरेक्शन से इस तरफ मूव करेंगी, ठीक है। विंड विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस टू दिस, और उसकी वजह से जो भी फिनोमेना आप ऑब्जर्व करोगे। सो सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगिंस टू सेट इन अराउंड दिस ट्रफ. A striking feature of the hot weather season is the loo. So those who live in the North India, they are well aware of this कि यहाँ पे लू चलती है, इसको बोलते हैं लू चलना हिंदी में. These are strong, gusty, hot, dry winds blowing during the day over the north and northwestern India. तो उत्तरी और उत्तर पश्चिमी इंडिया में ये दिन के समय फ्लो करती है कौन सी हवा, लू। तो ये आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा गर्मी जब पड़ती है, देन दिस एयर फ्लोज विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, आंधी के रूप में होती है, गस्टी, हॉट एंड ड्राई, बहुत गर्म और एकदम ड्राई होती है, और इसमें हीट स्ट्रोक्स लगते हैं, ठीक है। हीट स्ट्रोक्स उस समय आपके न्यूज में रहेगा, और इसीलिए देयर आर सम प्रिकॉशंस रिकमेंडेड व्हेन यू गो आउटसाइड इन दोस टाइम्स. समटाइम्स दे इवन कंटिन्यू until late in the evening. कभी कभी लेट इवनिंग तक भी चल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन दी डे. डायरेक्ट एक्सपोजर टू दीज विंड्स may even prove to be fatal. हीट स्ट्रोक्स बोलते हैं, डायरेक्ट अगर आपका एक्सपोजर हो गया, एंड इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, इफ यू आर डिहाइड्रेटेड एंड थिंग्स लाइक दैट, सो इट कैन बी फेटल ऑल्सो. डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन. धूल की जो आंधी होती है, डस्ट स्टॉर्म्स, they are very common during the month of May in northern India. These storms bring temporary relief as they lower the temperature and may bring light rain and cool breeze. तो ये कभी कभी जो है रिलैक्स करती हैं, टेम्पररी रिलीफ, ठीक है। टेम्पररी रिलीफ दे कैन ब्रिंग, हाउ, दे मे लीड टू सम लाइट रेन एंड कूल ब्रीज, टोरेंशियल रेन वो करवा सकती हैं, ठीक है, कन्वेक्शनल रेनफॉल. दिस इज ऑल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज्ड थंडर स्टॉर्म, इसी को बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल, एसोसिएटेड विद वायलेंट विंड्स, टोरेंशियल डाउनपोर्स. तो ये टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन है कि अगर ये सरफेस बहुत गर्म हो जाए तो एयर अपलिफ्ट होगी, ठीक है। अब एयर अपलिफ्ट होगी तो एडियाबैटिक कूलिंग होगी ऊपर, जैसे ही ऊपर जाएगी तो हाइट के साथ साथ टेम्परेचर फॉल करेगा, और ऊपर जा करके ये कंडेंस होगी, पानी बनेगी और फिर रेनफॉल करवाती है. तो जब अगर बहुत नीचे ओवर हीटिंग हो जाए तो उस केस में कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है, और ये कहाँ पे बहुत कॉमन है, इक्वेटोरियल एरिया में तो ये ऑलमोस्ट डेली फिनोमेना है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो इस वजह से वहाँ ज़्यादा ईजी है. ट्रॉपिक्स में ह्यूमिडिटी उतना अवेलेबल नहीं है, तो इट्स नॉट एवरी डे फिनोमेना. एसोसिएटेड विद वायलेंट विंड्स, तो उस समय वायलेंट विंड्स होंगे. टोरेंशियल डाउनपोर, अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी.
कंपाउंडेड बाय हेल, कभी कभी हेल भी उसमें गिर सकता है, पत्थर के जो टुकड़े, बर्फ के जो टुकड़े गिरते हैं. In West Bengal, these storms are known as काल बैसाखी. These terms are important from exam perspective. कहाँ पे काल बैसाखी बोलते हैं? वेस्ट बंगाल में. Towards the close of the summer season, pre-monsoon showers. ठीक है. अब समर सीजन खत्म होने वाला है, मतलब मई का एंड है. मार्च टू मई बताया हॉट सीजन. तो वहां पे अब प्री मानसून शावर्स आर कॉमन, स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटका. तो वहां पे प्री मानसून शावर्स आर वेरी कॉमन. So those who reside in these places, they might be more aware of these. They help in the early ripening of mangoes. Mangoes की जल्दी पकने में मदद करते हैं. Which kind of showers? Pre-monsoon showers, and are often referred to as mango showers. Next is advancing monsoon. तो मानसून क्लाउड्स अब आ रही हैं, तो उस समय कैसा सीजन होता है? By early June, the low pressure condition over the northern plains intensifies. Early June में क्या हो रहा है कि लो प्रेशर कंडीशन ऑन दी, तो इंडियन लैंड मास जो है इस पे लो प्रेशर जोन आपका ये बनेगा. इस पूरे पे लो प्रेशर जोन बन रहा है, और इस वजह से साउथ वेस्ट से, इधर से मॉनसूनल विंड्स आएंगी, कैरिंग ह्यूज ह्यूमिडिटी फ्रॉम द अरेबियन सी. ठीक है, इंडियन ओशन और अरेबियन सी से होते हुए आ रही है. तो ये डेट्स दे रखी हैं, आप देख सकते हैं. 1 जून, 1 जून को ये यहाँ पहुंच जा रही है. किस कोस्ट पे? केरला कोस्ट पे. 5 जून में आप देखो यहाँ पहुंच जा रही है. 10 जून में आप देखो मुंबई के आसपास पहुंच जा रही है. 15 जून गुजरात. 1 जुलाई. सो दीज आर रफ फिगर्स, देयर विल बी सम प्लस माइनस ऑन रेगुलर बेसिस, बट 30 ईयर्स का एवरेज आप देखो तो इस टाइप का आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो इस रीजन को कवर कर ले रहे हैं. 1 जून, 1 जून में इधर जैसे नॉर्थ साउथ इंडिया पूरा कवर हो जा रहा है. 5 जून तक आपका कर्नाटका, आंध्र प्रदेश रीजन ये कवर हो जा रहा है, तेलंगाना रीजन. 10 जून तक आपका ये रीजन इसके कवरेज में आ जा रहा है. 15 जून तक आप देख लो सेंट्रल इंडिया वगैरह सब आ जा रहे हैं इसके कवरेज में. 1 जुलाई तक ऑलमोस्ट पूरा इंडिया इसके कवरेज में आ गया, और 15 जुलाई में तो ये बचा खुचा डेजर्ट रीजन भी आ जा रहा है. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड दी मैप्स. इट अट्रैक्ट्स, व्हाट अट्रैक्ट्स? द लो प्रेशर, बहुत इंटेंस लो प्रेशर जो डेवलप हुआ है. तो ओशन के ऊपर क्या है? हाई प्रेशर है, तो वहां से विंड्स को अट्रैक्ट कर रहा है, द ट्रेड विंड्स. और इस जोन में क्या फ्लो करती है? ट्रॉपिक्स में ट्रेड विंड्स फ्लो करती है. ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर की ट्रेड विंड्स भी अब यहाँ आ रही है कि ITCZ जो है, ITCZ जो जनरली इक्वेटर पे होता है, दैट इटसेल्फ हैज शिफ्टेड ओवर इंडियन लैंड मास बिकॉज ऑफ द लैंड मास इफेक्ट. लैंड मास की जो हीटिंग होती है दैट इज मोर देन द ओशनिक सरफेस. तो जो लोअर प्रेशर है, लो प्रेशर जोन है, वो शिफ्ट हो जाता है इंडियन लैंड मास के ऊपर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर. दीज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये हमने लास्ट टाइम समझा था कि ये क्यों हो जाते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, क्यों साउथ वेस्ट मानसून विंड्स बन जाते हैं? बिकॉज ऑफ कोरियोलिस इफेक्ट. आफ्टर दे इंटर into the northern hemisphere, there they will deflect rightwards. Originate over the warm subtropical areas of the southern ocean in southern hemisphere. They cross the equator and blow in a southwesterly. देख रहे हैं डायरेक्शन चेंज हो गया, और क्योंकि साउथ ईस्टर्ली मतलब क्या हुआ? सो सपोज यहाँ पे वो जनरेट हुए हैं इस इक्वेटोरियल सदर्न ओशन में, तो यहाँ पे ट्रेड विंड्स इधर की तरफ फ्लो करेंगी. साउथ ईस्ट से आ रही हैं, यहाँ आके डिफ्लेक्ट हो जाएंगे किधर? राइट की तरफ. एंड दे विल बिकम after equator, this is equator, after equator they will become southwestern due to Coriolis effect. They cross the equator and blow in a southwesterly direction, entering the Indian peninsula as the southwest monsoon. ठीक है, इनको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं? साउथ वेस्ट मानसून बोल दे रहे हैं. As these winds blow over warm oceans, they bring abundant moisture to the subcontinent. Now Indian Ocean is what? Southern Ocean is warm, Indian Ocean is warm. ठीक है, ट्रॉपिक्स में है, सो दे आर नेचुरली वार्मर देन अदर एरियाज. तो ये मॉइस्चर बहुत कंटेंट इनका ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई दे ब्रिंग सो मच रेनफॉल. These winds are strong and blow at an average velocity of 30 km per hour. With the exception of the extreme northwest, the monsoon winds
cover the country in about a month. The inflow of the southwest monsoon into India brings about a total change in the weather. अब इनके आने से क्या होता है? Weather totally change हो जाता है. Early in the season, the windward side of the western Ghats receives very heavy rainfall. Windward side मतलब साउथ वेस्ट मानसून को फेसिंग साइड, जो कोस्टल फेसिंग साइड जो है वेस्टर्न घाट्स का, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स, receives very heavy rainfall, more than 250 centimeter. The Deccan Plateau and parts of Madhya Pradesh also receive some amount of rain in spite of lying in the rain shadow region. ठीक है, डेक्कन प्लेटू एक तरह से ये आपका रेन शैडो में, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स के रेन शैडो रीजन में, वेस्टर्न घाट्स के उस साइड पड़ रहा है ये, ईस्ट साइड में, तो रेन शैडो रीजन हुआ, तब भी उसको सिग्निफिकेंट रेन मिल जाता है, कुछ रेन मिल जाता है. द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इज रिसीव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ होता है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में होता है. विच पार्ट? Monsoon in the southern ranges of the Khasi Hills receives the highest average rainfall in the world. Rainfall in the Ganga Valley decreases from east to the west. अब ये important figures हैं. तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पे हो रही है वर्ल्ड की? इस एरिया में हो रही है आपकी. गारो खासी जयंतिया तीनों इसी एरिया में है, तो यहाँ पे हो रही है. यहाँ पे ये देखिए, जो वेस्ट ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल से जो ब्रांचेस चली हैं, जो साउथ वेस्ट मानसून है यहाँ से भी आ रही है, साउथ वेस्ट मानसून यहाँ भी आ रही है, ठीक है, यहाँ भी आ रही है, और फिर चूंकि लो प्रेशर यहाँ है तो इधर की तरफ मुड़ जाएंगी बे ऑफ बंगाल से. ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट रहेगा. ठीक है, तो सबसे ज्यादा रेनफॉल आपका इज हैपनिंग इन दिस रीजन. नेक्स्ट इट इज सेइंग कि रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेस फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट. राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट स्कैंटी रेनफॉल. अब अगर आप पैटर्न देखो तो जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है दैट रीचेज इन दी गंगा प्लेन. जो यहाँ से सदर्न से आती है, साउथ वेस्ट मानसून आती है बे ऑफ बंगाल के थ्रू, so that will be moving like this towards the northern plains, and some part will come from this also, from here also, but they generally move in this direction. ठीक है, क्योंकि अरावली का रेंज आप देखेंगे, so the Aravali is like this, so that doesn't create any obstruction for the southwest monsoon, so it easily passes through the Aravalis, parallelly to Aravalis, and it causes scanty rainfall in this Rajasthan and Gujarat regions. तो यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई रेंज नहीं है ऐसा, माउंटेन रेंज, कोई रिलीफ फीचर नहीं है साउथ वेस्ट मानसून को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, और इसलिए वो इजीली पास कर जाते हैं यहाँ से विदाउट कॉजिंग मच रेनफॉल, द अरेबियन सी ब्रांच. अब जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, इसमें आपकी जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ये फ्लो करती है. तो बे ऑफ बंगाल से फ्लो कर रही है, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा मॉइस्चर क्या होगा? इस रीजन में होगा. तो जब वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ आप बढ़ोगे, तो बिकॉज दिस ब्रांच इज कॉजिंग रेनफॉल इन दी प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, तो वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट आपका रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन कम होता जाएगा. तो सबसे ज्यादा आपका किधर होगा? बंगाल, बिहार, यूपी. तो राजस्थान पहुंचते पहुंचते इस ब्रांच के थ्रू भी ह्यूमिडिटी उसकी कम होती जाएगी, प्रेसिपिटेशन होता जाएगा, तो मॉइस्चर कंटेंट कम होता जाएगा और रेनफॉल आपका कम होता जाएगा. ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज ट्रेंड्स. Rainfall in the Ganga Valley, that is northern plains, actually decreases from east to the west. और ये पैटर्न हम देखते भी हैं. सबसे ज्यादा क्रॉप की आप देख लो कल्टीवेशन, जो हाई वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स हैं लाइक राइस, वो कहाँ ग्रोन की जाती है? बंगाल में, बिहार में. और आप जैसे जैसे वेस्टर्न साइड में बढ़ते जाओगे तो मोटे अनाज की तरफ, जो which requires less amount of water for cultivation, they will be grown much more. Though because of irrigation some patterns have changed, cropping patterns, but जो natural pattern है that is like that, and that is also visible in their food culture. That's what we learned in the previous chapter as well. Now another phenomenon associated with the monsoon is its tendency to have breaks in rainfall. Thus it has wet and dry spells. In other words, the monsoon rains take place only for a few days at a time. They are interspersed with rainless intervals. These breaks in monsoons are related to the movement of the monsoon trough. For various reasons, the trough and its axis keeps on moving northward or southward
which determines the spatial distribution of rainfall. When the axis of the monsoon trough lies over the plains, rainfall is good in these parts. On the other hand, whenever the axis shifts closer to the Himalayas, there are longer dry spells in the plains and widespread rain occur in the mountainous catchment areas of the Himalayan rivers. These heavy rains bring in their wake devastating floods, causing damage to life and property in the plains. ठीक है, तो इसको ब्रीफली समझते हैं हम लोग. अब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब मानसून सीजन होता है तो वी डोंट हैव रेन्स एवरी डे. लॉजिकली तो यही है. लॉजिकल क्या है? लॉजिकल ये है कि लो प्रेशर जोन बना हुआ है इंडिया के लैंडमास के ऊपर. साउथ वेस्ट मानसून जिसमें कि मॉइस्चर कंटेंट है वो फ्लो कर रही है. देन वी शुड हैव रेन एवरी डे, राइट? लेकिन ऐसा होता नहीं है. तो आपने ऑब्जर्व किया होगा बारिश के सीजन में ऐसा नहीं है कि रोज बारिश हो रही है. सो कुछ दिन ऐसे होंगे जिसमें लगातार 3-4 दिन बारिश होगी, कुछ दिन बारिश होगी, फिर कुछ दिन ऐसे होंगे जिसमें बिल्कुल बारिश नहीं होगी. तो उसको क्या बोल रहा है? ये ब्रेक्स बोल रहा है. ठीक है. अब ये ब्रेक्स क्यों होते हैं? दैट इज व्हाट वाज एक्सप्लेन्ड इन द पैसेज दैट वी रेड. तो ये ब्रेक्स इसलिए होते हैं क्योंकि जो लो प्रेशर जोन है, जो ट्रफ हमने इससे पहले देखा था कि इस रीजन में बन रहा था ट्रफ, वेरी लो प्रेशर इंटेंस जोन, तो ये शिफ्ट होता रहता है. कहाँ शिफ्ट होता है? तो कभी ये प्लेन्स पे रहता है और कभी ये शिफ्ट होके हिमालयन फुट हिल्स में चला जाता है. ITCZ जिसको बोल सकते हैं, जिसको वेरी लो प्रेशर जोन बोल सकते हैं, और ट्रफ, द टर्म यूज्ड इज मॉनसून ट्रफ. तो दैट इज रेफरिंग टू दिस वेरी इंटेंस लो प्रेशर जोन. तो कभी ये प्लेन्स के ऊपर रहता है और कभी ये हिमालयन उसमें चला जाता है. तो जब यहाँ रहेगा तो बहुत हाई रेनफॉल होगा और लगातार कुछ दिन तक चलेगी बारिश. Then continuous rain you will witness for few days. When it shifts to the Himalayan foothills, then what happens? Then it will cause heavy rainfall in this region and you will have dry spell here. So you have no rain here and you have very heavy rains in the Himalayan foothills. And what are the Himalayan foothills? They are the catchment areas. Catchment areas means कि यहाँ पर अगर बारिश होगी तो वो रिवर्स में जाएगा, जो हिमालयन रिवर्स है उसमें वो ट्रांसफर होगा. And that leads to what? That leads to floods. For example, कोसी रिवर में फ्लड्स आते हैं बिहार में. ऐसे ही डिफरेंट अदर तीस्ता वगैरह जो भी रिवर्स हैं जिसमें फ्लड्स आते हैं. So that will increase the chances because of this heavy rainfall that will take place in the catchment area, increasing the volume of the river and causing floods and devastations in the plains. The frequency and intensity of tropical depressions to determine the amount and duration of monsoon rains. So tropical depressions, that is again, depression means low pressure zone only. So tropical depressions, they also affect the monsoon rains. These depressions form at the head of the Bay of Bengal. अब ये tropical depressions it is talking about कि tropical zone जो है ocean के ऊपर, उसमें लो प्रेशर डेवलप होता है और उसी से साइक्लोनिक स्टॉर्म्स डेवलप होते हैं. सो नॉट ऑल ट्रॉपिकल डिप्रेशंस विल लीड टू formation of cyclonic storms, but if they are strong enough and all the situations and conditions are favorable for generation of a cyclonic storm, then it will lead to formation of cyclonic storms. So obviously if cyclones form, they also affect the rainfall pattern. तो आपने देखा होगा कि जब कहीं पे भी साइक्लोन की न्यूज आती है तो कुछ दिनों तक वेदर चेंज हो जाता है, एंड यू विटनेस rainfall, or if the weather is hot and humid, you will feel some relief for a few days because of the tropical depression and its effect. These depressions form at the head of the Bay of Bengal and cross over to the mainland. तो Bay of Bengal के ऊपर बनता है and then mainland पे आता है. The depressions follow the axis of the monsoon trough. अब ये कैसे फ्लो करता है? उसी लो प्रेशर जोन से जहां पे भी एक्सिस होगा उसका, जिस एरिया से जैसे हमने ऊपर देखा था अभी, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट जो गंगा प्लेन था उसमें बन रहा था, तो उसके थ्रू वो फ्लो करेगा. द मॉनसून इज नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज. द alternation of dry and wet spells vary in intensity, frequency and duration. So
ये बहुत अनसर्टेन अनप्रिडिक्टेबल वेदर्स होते हैं। आप टेम्परेट जोन में जाओगे तो वेदर सिस्टम इज वेरी प्रिडिक्टेबल, रेनफॉल, उसकी इंटेंसिटी, सारी चीज़ें आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। बट मानसून इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज देर आर सो मेनी डायनेमिक फैक्टर्स इन्वॉल्व। तो कब कितनी बारिश हो जाएगी, कितनी इंटेंस हो जाएगी, कब कितनी बार हो जाएगी, कितनी देर तक होगी, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल. While it causes heavy floods in one part, it may be responsible for droughts in the other. तो कुछ जगह ये फ्लड ला सकता है, कुछ जगह इसकी वजह से ड्रॉट भी हो जाता है साथ में, साइमल्टेनियसली इट कैन टेक प्लेस. इट इज ऑफन इरेगुलर इन इट्स अराइवल एंड इट्स रिट्रीट. और ये बहुत रेगुलर नहीं है इन इट्स अराइवल. तो हमने जो डेट्स देखे हैं, दोज आर टेंटेटिव एवरेज, taken over a long period of time. Hence, it sometimes disturbs the farming schedule. Resultant impact is कि mostly Indian farmers' agriculture is dependent upon the monsoons for production, and it affects that because if schedule is not fixed, then it can harm the crops easily. Next is retreating or post monsoon. So during October November, a monsoon retreat होने का टाइम हो रहा है, वो उस वेदर की बात कर रहे हैं. With the apparent movement of the sun towards the south, now sun has started moving towards the southern hemisphere. Apparently, apparent movement, that is important. The monsoon trough or the low pressure trough over the northern plains becomes weaker. तो जो लो प्रेशर जोन बन रहा था इंडियन लैंड मास के हीटेड होने की वजह से, दैट विल बिकम वीकर. दिस इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय अ हाई प्रेशर. ग्रेजुअली वो हाई प्रेशर जोन बन जाएगा, तो wind will flow outwardly, so away from India. The southwest monsoon winds weaken and starts withdrawing gradually. By the beginning of October, the monsoon withdraws from the northern plains. The months of October to November form a period of transition from hot rainy season to dry winter condition. अब मानसून वेदर कैसा था उसको बोल सकते हैं हॉट रेनी सीजन. कोल्ड तो है नहीं, हॉट है प्लस रेनी है. और जो विंटर है वो कैसा है, दैट इज ड्राई एंड विंटर. और जो बीच का पीरियड होगा दैट विल बी अ ट्रांजिशन पीरियड. दैट्स व्हाट इज बीइंग सेड कि बीच का पीरियड जो होगा दैट विल बी समवेयर इन बिटवीन हॉट रेनी एंड ड्राई विंटर. The retreat of the monsoon is marked by clear skies and rise in temperature. अब इस समय क्या वेदर है, कैसा है, आसमान खाली है, बादल नहीं है. राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा है. ठीक है. Monsoon Ram, the wettest place on the earth, is also reputed for its stalagmite and stalactite caves. So additional feature that you can look to. While day temperatures are high, nights are cool and pleasant. तो अगर क्लाउड नहीं है तो उस क्या होगा, फिर दिन में थोड़ी सी हीटिंग ज़्यादा हो जाएगी. क्लाउड नहीं है तो डायरेक्ट सनलाइट आएगा. और रात में कूलिंग ज़्यादा हो जाती है क्योंकि क्लाउड नहीं है, तो जो लैंड मास है वो दैट विल रेडिएट बैक इट्स हीट easily also. Cloud is not there to protect. Owing to the conditions of high temperature and humidity, the weather becomes rather oppressive during the day. अब क्या हो जाता है कि हाई टेम्परेचर भी है दिन में और ह्यूमिडिटी भी है, क्योंकि अभी पूरी तरह से मानसूनल विंड्स लीव नहीं किए हैं लैंड मास को. तो ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है और हाई टेम्परेचर भी है, तो ऑप्रेसिव हो जाता है. दिन का समय बहुत ही ऑप्रेसिव, मतलब इट्स अनप्लेजेंट. ठीक है. ह्यूमिड एंड हॉट, दैट इज द वर्स्ट काइंड ऑफ वेदर. दिस इज कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गुड टर्म, अक्टूबर हीट बोलते हैं. अक्टूबर हीट फिनोमेना कब ऑब्जर्व करते हैं, किस सीजन में, रिट्रीटिंग मानसून के समय ऑब्जर्व करते हैं, अक्टूबर में. द सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर द मर्करी बिगिंस टू फॉल रैपिडली इन नॉर्दर्न इंडिया. ठीक है. उसमें अब कोल्ड वेदर आना शुरू हो गया है. द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट्स ट्रांसफर टू द बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर. ठीक है. तो नॉर्थ वेस्ट मतलब राजस्थान वाले एरिया से गेट ट्रांसफर टू द बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल की तरफ शिफ्ट हो गया है लो प्रेशर कंडीशन. दिस शिफ्ट इज एसोसिएटेड विद द अकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशंस. और आपने सुने होंगे कि जो सबसे ज्यादा साइक्लोनिक डिप्रेशंस आते हैं, सबसे ज्यादा साइक्लोन्स की न्यूज आएगी किस समय, अक्टूबर के आसपास ही आती है, अक्टूबर नवंबर में ही. तो उस समय वहां पर बे ऑफ बंगाल के ऊपर क्या हो रहा है, लो प्रेशर हो रहा है. तो लो प्रेशर होगा तो प्लेन्स से लो प्रेशर दैट इज बे ऑफ बंगाल की तरफ विंड मूव करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. और इस वजह से जो मॉनसूनल विंड्स अभी प्लेन्स के ऊपर थी, दे विल कंप्लीटली मूव टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल.
ठीक है, डिप्रेशंस विच ओरिजिनेट ओवर द अंडमान सी, लोकेट करिए अंडमान सी को मैप पे, वहां पे ये ओरिजिनेट करती हैं क्या, दी साइक्लोनिक winds, cyclonic depressions. These cyclones generally cross the eastern coast of India, cause heavy widespread rain. These tropical cyclones are often very destructive. तो ये cyclonic disturbances जो हैं, cyclones जो generate हो रहे हैं अंडमान सी पे, ये आते हैं और ईस्टर्न कोस्ट वी नो, ठीक है, इधर नॉर्दर्न सरकार वाली कोरोमंडल कोस्ट, दीज आर द ईस्टर्न कोस्ट, यहाँ पे ये लैंड करेंगे और वहाँ पे हैवी डिस्ट्रक्शन करते हैं, हैवी रेनफॉल करते हैं, थिकली पॉपुलेटेड डेल्टाज। तो रेनफॉल का एक ये भी पैटर्न हो गया, जो कोस्टल जोन्स हैं उनके वहाँ पे अक्टूबर नवंबर में बहुत हेवी रेनफॉल होता है, बट दैट इज नॉट ड्यू टू मानसूनल रेनफॉल्स, दैट इज ड्यू टू साइक्लोनिक रेनफॉल. These tropical cyclones are often very destructive. The thickly populated deltas of the Godavari, thickly populated deltas of Godavari, Krishna, and the Kaveri are frequently struck by cyclones, which cause great damage to life and property. Sometimes these cyclones arrive at the coasts of Odisha, West Bengal, and Bangladesh. तो यहाँ के कोस्ट तक भी जो अपर पार्ट है ईस्टर्न कोस्ट में, जो नॉर्दर्न साइड में है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, यहाँ पे कम पहुँचते हैं. उड़ीसा में तो फिर भी पहुंच जाते हैं, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में बहुत रेयरली आपको साइक्लोन्स रीचिंग देयर यू विल फाइंड, तो कभी कभी वहां भी पहुंच जाते हैं. द बल्क ऑफ द रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिप्रेशंस एंड साइक्लोन्स. कोरोमंडल कोस्ट कहाँ हो गया, तमिलनाडु के साइड में हो गया, ब्रॉडली तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के साइड में. तो वहां पे जो है बल्क मतलब मैक्सिमम रेनफॉल जो वहां पे होती है वो बिकॉज ऑफ दीज डिप्रेशंस एंड साइक्लोन्स की वजह से होती है. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल वी विल रेफर टू parts of western coast and northeastern India receives over about 400 centimeter. सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ पे हो रही है, वेस्टर्न कोस्ट पे एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. ये आप देख लो, मैप आपको दे रखा है, इसमें अबव 400, 200 to 400 और सबसे कम वाले ये हैं. ठीक है, तो सबसे डीप कलर यहाँ पे किस लिए हो रहा था, ओरोग्राफिक रेनफॉल हो रहा था. ओरोग्राफिक रेनफॉल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेस्टर्न घाट्स, और नॉर्थ ईस्टर्न में हो रहा है अगेन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हिमालयाज एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच इज रीचिंग देयर. सो प्रेजेंस ऑफ हिमालयाज इज ऑब्स्ट्रक्टिंग देयर. यहाँ पे हिमालयाज प्रेजेंट है, वो ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रेनफॉल बहुत ज्यादा है. नेक्स्ट इज इट इज लेस देन 60 centimeter in the western Rajasthan and adjoining parts of Gujarat, Haryana and Punjab. Rainfall is equally low in the interior of the Deccan Plateau. तो अब बता रहा है कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब इसमें बहुत कम है. इस एरिया में आप देखो रेनफॉल बहुत कम है. और ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है. जो अरेबियन सी का ब्रांच आता है, अरेबियन सी का जो ब्रांच आ रहा है आपका मानसून का, तो अरावलीज ऐसे ही लाई करती है. अरावलीज का क्या है, ओरिएंटेशन ऐसा है. तो एक तो अरावलीज ऑलरेडी इरोडेड हैं, दे डोंट हैव मच हाइट टू ऑब्स्ट्रक्ट द मॉनसूनल विंड्स. सेकंड, दे लाई पैरेलली, तो पैरेलली लाई करते हैं तो इनके साथ फ्लो कर जाते हैं पैरेलली. देयर इज नथिंग टू ऑब्स्ट्रक्ट एंड कॉज रेनफॉल. यही चीज आप सेंट्रल लैंड में अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे विंध्यन माउंटेन्स हैं, सतपुरा रेंजेस हैं, बट दे ऑल्सो लाई ऑलमोस्ट पैरेलली टू दी winds, southwest monsoon winds. So they also don't offer obstruction. So rainfall will be lesser, not much in comparison to that. Okay, rainfall is equally low in the interiors of the Deccan Plateau and east of the Sahyadri. ये क्या हो रहा है, रेन शैडो. सह्याद्री किसका नाम है, सह्याद्री इज द नेम ऑफ वेस्टर्न घाट्स ओनली. तो वेस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न साइड में क्या है, रेन शैडो रीजन में आता है, और उस वजह से रेनफॉल वहां पे कम है. व्हाई डू दीज रीजन्स रिसीव लो रेनफॉल, वी हैव डिस्कस्ड. The third area of low precipitation is around Leh in Jammu and Kashmir. The rest of the country receives moderate rainfall. The rest of the country receives moderate rainfall. Snowfall is restricted to the Himalayan region. Snowfall केवल Himalayan region में होगा. Owing to the nature of monsoons, the annual rainfall is highly variable. तो एनुअल रेनफॉल जो है वो हाईली वेरिएबल है, केवल कॉन्सेंट्रेटेड कब, मानसून सीजन में. फ्रॉम ईयर टू ईयर वेरिएबिलिटी इज हाई. ईयर टू ईयर भी एनुअल रेनफॉल वैरी करेगा because monsoon itself is unpredictable. Variability is high in the regions of the low rainfall such as parts of Rajasthan. जो low rainfall वाले regions है वहाँ पे variability और भी ज़्यादा है.
example Rajasthan, Gujarat, and leeward side of Western Ghats. As such, while areas of high rainfall are liable to be affected by floods, areas of low rainfall are drought prone. तो जो एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल है वहाँ पे फ्लड आने का बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि एक साथ बारिश हो जाती है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, जो 3-4 महीने हैं मानसून सीजन के उसी में सारी बारिश होती है, तो इसीलिए बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रेनफॉल होता है, तो फ्लड आएगा जहाँ पे ज़्यादा होगा, और जहाँ पे कम है दे आर प्रोन ड्रॉट प्रोन, वहाँ पे सूखा आने का बहुत ज़्यादा चांस है. Monsoon as a unifying bond, you have already known the way of Himalayas protect the subcontinent extremely cold winds from Central Asia. तो एक और यूनिफाइंग फीचर बता रहे हैं, दिस इज टॉकिंग अबाउट द नेशन. ठीक है, ज्योग्राफी कैसे हमें यूनाइट करती है, तो एक तो हिमालय का प्रोटेक्शन हम सारे लोगों को मिल रहा है, तो दैट इज यूनिफाइंग फीचर. दिस इनेबल्स नॉर्दर्न इंडिया टू हैव यूनिफॉर्मली हायर टेम्परेचर्स कंपेयर टू अदर एरियाज ऑफ द सेम लैटिट्यूड. तो ये बता रहा है बेसिकली कि जो नॉर्दर्न इंडिया है उसी लैटिट्यूड पे आप अगर बाकी कंट्रीज देखोगे तो वहाँ पे हालत ख़राब हो जाती है विंटर में, लेकिन यहाँ पे उतना नहीं होता है क्योंकि हिमालय बचा लेता है हमें. सिमिलरली द पेनिनसुलर प्लेट्यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी फ्रॉम थ्री साइड्स हैज मॉडरेट टेम्परेचर्स. तीनों साइड से पेनिनसुलर प्लेट्यू आप देखोगे सी से घिरा हुआ है, इधर भी इधर भी इधर भी, तो यहाँ पे मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है और इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा टेम्परेचर का. Despite moderating influences, there are great variations in the temperature conditions. और उसके बाद भी लेकिन टेम्परेचर कंडीशंस में वेरिएशंस होंगे. ऑब्वियसली कोस्टल रीजन में थोड़ा अलग, वहाँ मॉडरेटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, जो कॉन्टिनेंटल रीजन है यहाँ पे मॉडरेटिंग इफेक्ट कम होगा. Nevertheless, the unifying influence of the monsoon on the Indian subcontinent is quite perceptible. तो मानसून वेदर तो सब पे अफेक्ट कर रहा है ना, तो आप एक तरह से देखो तो ड्राई विंटर का कॉमन कॉन्सेप्ट हो गया, except Tamil Nadu coast. Then you have hot summer weather, that is also common. Southern India में उतना hot नहीं होगा. Monsoon के समय rain होगा, that is also common to most of India. So that is a unifying feature, this monsoon climate. Though there are regional variations that we have studied. The seasonal alteration of the wind systems. Seasonal alteration मतलब मानसून एक तरफ, विंड सिस्टम क्या था जब मानसून आ रही थी, एडवांसिंग मानसून, तब डायरेक्शन विंड का अलग था और एकदम उसके अपोजिट हो गया रिट्रीटिंग मानसून के समय, तो सीजनल ऑल्टरेशन इसको बोल रहे हैं. एंड द एसोसिएटेड वेदर, और उसकी वजह से जो वेदर चेंजेस हैं ये प्रोवाइड करती हैं क्या, रिदमिक साइकिल ऑफ सीजन. एक सीजन्स में भी एक रिदमिक साइकिल प्रोवाइड करती हैं. इवन द अनसर्टेनिटीज ऑफ रेन एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आर वेरी मच टिपिकल ऑफ द मानसून. Uncertainties of rain and uneven distribution are very much typical. तो जो ये रेन हो सकती है, नहीं हो सकती है, कितनी ज़्यादा होगी, क्या फ्रिक्वेंसी होगी, जो अनसर्टेनिटीज़ हैं और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है कि कहीं पर बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं पे फ्लड आ रहा है, कहीं पे ड्रॉट आ रहा है, कहीं पे बिल्कुल नहीं, तो ये जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, अनइवननेस है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स के मानसून की. तो दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ मानसून क्लाइमेट. The Indian landscape, its animal and plant life, its entire agriculture calendar, and the life of the people, including their festivities, revolve around this phenomena. तो बहुत सारे फेस्टिविटीज, ओणम, पोंगल, लोहरी, ये सब देखेंगे आप, सब इनके अराउंड ही रहते हैं. इस क्लाइमेटिक जोन उसके अराउंड जो एग्रीकल्चर सराउंड करता है उसकी वजह से सारी चीजें, कल्चर जो है शेप करता है ये क्लाइमेट. Year after year, people of India from north to south and from east to west eagerly await the arrival of the monsoon. तो सारे लोग मानसून का इंतजार करते हैं. ऑब्वियसली जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, दीज मानसून विंड्स बाइंड द होल कंट्री बाय प्रोवाइडिंग वाटर टू सेट द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इन मोशन. ठीक है, द रिवर वैलीज विच कैरी दिस वाटर आल्सो यूनाइट अस एज अ सिंगल रिवर वैली यूनिट. और जो रिवर वैलीज इस मानसून के बारिश को कैरी करती है, वॉल्यूम को, और हमें पानी प्रोवाइड करती है, दैट आल्सो एक्ट्स एज अ यूनिफाइंग फीचर. So this completes this lesson, this chapter on climate, especially the Indian climate. आप इसके questions को देख लीजिए and then we will meet in the next video with new chapter. Okay, thanks.